हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है साइक्लोप्लेजिक्स एंड मर्डेटिक्स। Cycloplegics refraction was first put in scientific basis by Donders and universally accepted after the publication of Donders' Anomalies of Accommodation and Refraction of Eyes in 1864. What is meant by cycloplegics refraction? Cyclo is equal to ciliary plegics is equal to paralysis of palsy. Cycloplegia is equal to ciliary paralysis. Use anticholinergic agent and block response of ciliary muscles and iris sphincter muscles which cause accommodation of the lens, relax and midriasis. A cycloplegic refraction is a procedure used to determine a person's complete refractive error by temporarily paralyzing the ciliary body using cycloplegic eye drop. During this test, the accommodation lens is fully relaxed. साइक्लोप्लेजिक्स रिफ्रैक्शन करने की हम उसी कंडीशन में करते हैं जब हमको सिलेरी मसल्स को पैरालाइज करना होता है या एकोमोडेशन पावर को रिलैक्स करना होता है। एकोमोडेशन पावर को रिलैक्स करके सिलेरी मसल्स को पैरालाइज करके ही पेशेंट का जो एकोमोडेशन रिलैक्स है उस कंडीशन में हम पेशेंट का रिफ्रैक्शन करते हैं। जो यंग पेशेंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वे एकोमोडेशन पावर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। उस एकोमोडेशन पावर को रिलैक्स करने के लिए ही साइक्लोप्लेजिक्स रिफ्रैक्शन किया जाता है। Cycloplegic refraction, cycloplegia, it is condition when the accommodation is fully relaxed and the retinoscopy finding for both distance and near remains same. The completeness of the cycloplegia is determined by assessing the residual accommodation by push-up test. The midriasis and cycloplegia do not complete at the same time. Most often when there is complete midriasis, the cycloplegia considered to be complete for the refraction and the refraction may be unnecessarily delayed or additional drugs may be used necessarily. Agents causing cycloplegia. Cycloplegics inhibit the action of acetylcholine on the effector's sites innervated by the autonomic nerves. They block the muscarinic receptor site. They also called anti-muscarinic cholinergic antagonistics. Cycloplegic agent. नंबर 1 एट्रोपिन सल्फेट, नंबर 2 होमोट्रोपिन हाइड्रोब्रोमाइड, नंबर 3 साइक्लोपेंटालेट्स हाइड्रोक्लोराइड एंड नंबर 4 ट्रोपिकामाइड। फर्स्ट बात करते हैं एट्रोपिन की। नेचुरल एल्कोलाइड फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द बेलाडोना प्लांट एट्रोबेलाडोना, commercially available as in 1% eye drops or 1% ointment. Onset of action is slow, 3 to 6 hours to reach maximum, but duration of action lasts up to 2 to 3 weeks. Apply 3 times daily for 3 days, both ointment and eye drop, and the test is done on 4 day. जो हमारी एट्रोपिन होती है ये हमारी ऑइंटमेंट एंड आई ड्रॉप दोनों में अवेलेबल होती है एंड 1% में अवेलेबल होती है। इसका जो एक्शन होता है वो स्लो होता है एंड जब पेशेंट को डायलेट करते हैं तो 3 to 6 आवर कम से कम इतना टाइम लगता है, लेकिन पेशेंट को हम ये दवाई दे देते हैं जब बच्चा होता है। हम बच्चे की आँख में डालने के लिए पेशेंट्स को दवाई दे देते हैं उनके पेरेंट्स को, जिससे कि पेशेंट को 3 दिन बाद बुलाया जाता है, जिससे प्यूपिल फुली डायलेट हो जाता है एंड एकोमोडेशन रिलैक्स हो जाता है। जो उसका टोटल इफेक्ट होता है वो 2 से 3 हफ्ते तक रहता है। 15 से 20 दिन कम से कम इसका टोटल इफेक्ट पेशेंट की आँख में रहता है। अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो डायरेक्ट इरिटेशन फ्रॉम द डक्ट इटसेल्फ, रिस्क ऑफ एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, ड्राई माउथ एंड इंक्रीज थ्रस्ट, फीवर, यूरिनरी रिटेंशन, एक्साइटमेंट्स, रेस्टलनेस, स्पीच डिस्टर्बेंस, एटेक्सिया, कन्वल्यूशन। ये कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं जब पेशेंट्स को एट्रोपिन प्रोवाइड कराते हैं। डेथ ऑफ 6 reported cases have occurred in children 3 years of age or younger.
Atropine contraindications: hypersensitivity to the belladonna alkaloids, have open angle or angle closure glaucoma, have tendency towards IOP elevation. बात करते हैं होमोट्रोपिन। 1/10 as potent as atropine, shorter duration of mydriasis and cycloplegia than atropine, duration of action lasts up to 3 to 5 days. It is not the drug of choice for cycloplegic infection most often. Cyclopentolate, most used, commercially available as 0.5%, 1% and 2% solution. Drugs of choice for the routine is nearly all age group, especially young children 5 to 14 years. Faster onset of action and shorter duration of effect. Cycloplegia occur in 45 minutes to 90 minutes of installation and duration of action last of 24 to 48 hours. जो इसका डायलेशन टाइम है वो 45 से 90 मिनट के अंदर पेशेंट डायलेट हो जाता है एंड टोटल इफेक्ट इसका 1 से 2 दिन रहता है, 24 से 48 घंटे तक रहता है एंड मोस्टली यूज़ की जाती है 5 साल से 14 साल तक के बच्चों की उम्र में एंड ये 0.5%, 1% एंड 2% में अवेलेबल होती है। साइड इफेक्ट है कॉमन साइक्लोपेंटोलेट्स की ब्लरिंग सेंसेशन ऑन इनिशियल इंस्टॉलेशन, allergic reaction to cyclopentolates are rarer and may be seen. Symptoms of irritation and diffuse redness, facial rash that develop within minute to hour of installation. Lacrimation and blur vision, disturbance in speech, restlessness. जब भी हम किसी पेशेंट को डायलेट करते हैं या कोई भी साइक्लोप्लेजिक्स ड्रग्स यूज़ करते हैं तो उसमें ब्लरिंग ऑफ विजन की कॉमन कंप्लेन होती है, जिससे जब आइरिस फैल जाती है, सिकुड़ जाती है और प्यूपिल डायलेट हो जाता है, तो ऐसे केसेस में पेशेंट को थोड़ी देर जितनी देर दवाई का असर रहता है ब्लरिंग ऑफ विजन की या थोड़ी सी फोटोफोबिया की कंप्लेंट रहती है। जब दवाई का असर अपने आप थोड़े टाइम बाद ख़त्म हो जाता है तो ये सिम्टम्स या साइन जो आ रहे हैं ये भी पेशेंट को ख़त्म हो जाते हैं। बात करते हैं ट्रोपिकामाइड की। इट इज़ कंसिडर इंडिकेटेड फॉर चिल्ड्रन साइक्लोप्लेजिया, वाइडली यूज फॉर मिड्रेटिस एजेंट, available in 0.5% and 1% solution. Cycloplegia is about 30 minutes. Duration of action is up to 2 to 6 hours. ये सबसे तेज़ी से पेशेंट के प्यूपिल को डायलेट करता है एंड जो इसका असर होता है आँख के अंदर वे 4 से 5 घंटे तक में इसका असर ख़त्म भी हो जाता है। साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो पेशेंट कॉमन कंप्लेन करता है ब्लर ऑफ विजन की, फोटोफोबिया होता है, आई इरिटेशन होता है, ड्राई माउथ हो सकता है, स्किन रैशेस हो सकती है, अपसेट स्टोमच और थ्रोइंग अप।